Good morning, students. This class we will go through chapter 11 of your SST book, that is natural disaster. You know what is disaster? Disaster is something by means of which we get so many loss, so many disadvantages, loss of lives and loss of materials happens due to disaster, like drought, flood, house on fire, earthquake. These are all the examples of natural disaster, because these disasters are happen due to nature, like cyclone. It is a natural disaster. Okay. Flood, natural disaster. Earthquake, natural disaster. Tsunami is again natural disaster. So these are some of the examples of natural disaster. It's not man-made. Due to nature, we get all these disadvantages in the form of disaster, natural disaster. Okay. So what we will learn about this natural disaster in this chapter? What we will learn about? That is natural disaster. What is it? Type of natural disaster. How many types of natural disasters are there? Causes of natural disaster and measures of safety. So natural disaster क्या है, कितना टाइप का है, उसका कारण क्या है, किसके लिए नेचुरल डिजास्टर होता है, और व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स ऑफ सेफ्टी. हम ये डिजास्टर होने से, नेचुरल डिजास्टर होने से प्रतिकार क्या करेंगे, सुरक्षा का प्रतिकार क्या करेंगे, इसका बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें देखो ये एक एग्जाम्पल, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डज द पिक्चर शो? द पिक्चर शो अबाउट अर्थक्वेक. Is it construction or destruction? It is destruction. What could be the reason behind this earthquake? Isn't it? Due to earthquake, our house collapse. Okay, people die. So this is the picture. You can observe it and you can answer it. There are two questions, three questions. What does the picture show? In this question, there are two options: construction, destruction. It is destruction. And what could be the reason behind it? Is the reason behind it is the earthquake, which is a natural disaster. So the picture given above shows the destruction caused by the forces of nature. Nature का जो force होता है उसका चलते ये destruction होता है. Events caused by forces of nature that cause heavy destruction to life and property are called natural disaster. देखो इसका डेफिनेशन है ये, इवेंट्स, जो इवेंट्स में क्या होता है, कॉज होता है, इवेंट कॉज बाय फोर्सेस ऑफ नेचर दैट कॉजेस हेवी डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर. सो नेचुरल डिजास्टर का फुल फॉर्म डेफिनेशन क्या है? Natural disaster is an event caused by the force of nature, caused by the forces of nature, because nature is having some forces. So natural disaster is natural disaster is an event caused by forces of nature that cause heavy destruction to the lives and properties are called natural disaster. So natural disaster क्या है ना? Events caused by forces of nature that cause heavy destruction of lives. Lives means lives of animals and plants and properties are called natural disaster. और natural calamities, कोई natural disaster को हम natural calamity भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Natural calamity. natural
natural डिसास्टर और इसको बोलते हैं कैलामिटी। नेचुरल डिसास्टर और नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। अर्थक्वेक, फ्लड्स, droughts and cyclones, these are the examples. The most common natural calamities are your earthquake is a natural calamity, flood another natural calamity, drought and cyclones. These are some of the examples of the natural calamities. First we will read about earthquake. So what is earthquake? So an earthquake is the sudden trembling और shaking of the surface of the earth. अर्थ का सरफेस में अगर सडन कुछ शेकिंग होगा या ट्रेम्बलिंग होगा, जो कि हिल जाना, अर्थ का सरफेस में कंपन सृष्टि होता है, हिल जाता है नेचर का फोर्स का चलते। कभी कभी अर्थ का सरफेस में अगर सडन ट्रेम्बलिंग और शेकिंग होता है तो वो उसको अर्थक्वेक कहलाता है। सो एन अर्थक्वेक is the sudden trembling or shaking of what? Shaking of the earth. That is called earthquake. So earthquake is the sudden trembling or shaking of earth. So नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? ये जो हम पढ़ रहे थे earthquake, an earthquake is the sudden trembling or shaking of the earth. So earth surface or surface of the earth. Earthquake can cause minor and sometimes major loss of the life and property. It can cause sometimes minor, sometimes major loss and life of the property. So earthquake can cause minor and sometimes major loss of life and property. Depending upon the magnitude of earthquake ranges from 0 to 9 on the Richter scale. रिचर स्केल एक तो स्केल होता है जहाँ अर्थक्वेक को हम नाप सकते हैं। अर्थक्वेक का जो कंपन होता है या जो मैग्नीट्यूड होता है या तीव्रता होता है उसको हम नाप सकते हैं ड्यू टू रिचर स्केल। एक स्केल होता है जिसको रिचर स्केल बोलते हैं। वो रिचर स्केल में हम उसका रेंज होता है 0 to 9। सो वो रेंज के अंदर अगर जितना ज़्यादा नंबर तक जाएगा उतना मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो ज़्यादा लॉस होगा प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टीज का। सो an earthquake is a sudden trembling of or shaking of the surface of the earth. Earthquakes can cause minor as well as massive loss of life and property. At times, the magnitude of earthquake ranges from 0 to 9 and it is measured in Richter scale. The destruction caused by earthquakes increases with the increase in the magnitude. For example, an earthquake with a magnitude of 3.6 may not be easy to feel, whereas an earthquake
which is a magnitude of 7.8 may lead to the collapse of building. बात समझ रहे? 0 to 9 ना स्केल, रिचर स्केल में, तो अगर 3.5 होता है, एक मार्क का हो गया 3.5, हमको फील हो ही नहीं सकता है. We may not feel the earthquake occurring in the magnitude of 3.5 रिचर स्केल में. लेकिन अगर 7 पॉइंट हो जाएगा रिचर स्केल में तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, बिल्डिंग में कोलैप्स. द earthquake tremors are measured by an instrument called seismograph. किसमें मेजर होता है? earthquake का जो तीव्रता है उसमें किसमें यूज होता है? seismograph. SMOGRAPH यहाँ लिखा है seismograph. So this is an instrument where the earthquake tremors are measured. ठीक है, रिचर स्केल में नाप सकते हैं उसका जो रेंज है earthquake का मैग्नीट्यूड रिचर स्केल में पाया जाएगा. और जो the earthquake tremors are measured by an instrument called seismograph. seismograph में हम earthquake को नापेंगे. So this is all about earthquake. You see the picture of earthquake. Building collapse due to an earthquake. जो बिल्डिंग बड़े-बड़े बिल्डिंग वो earthquake से कोलैप्स हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. So earthquake is a natural disaster or natural calamity. Okay? The magnitude of earthquake ranges from 0 to 9 on the Richter scale. Richter scale में ये इसका magnitude 0 to 9 होता है. और we can measure the earthquake magnitude through the seismograph. Okay? Then counts of an earthquake, causes of an earthquake. earthquake का क्या cause है? किसके लिए earthquake होता है? The earth crust is made up of vast plates of solid rocks known as tectonic plates. अर्थ क्रस्ट में या अर्थ का निचला हिस्सा में सॉलिड रॉक्स होते हैं. तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अर्थ क्रस्ट किससे तैयार होता है? वास्ट प्लेट्स ऑफ सॉलिड रॉक्स नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स. तो अर्थ का अंदर में बहुत निचला हिस्सा में टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जिससे अर्थ क्रस्ट तैयार होता है. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस along the joints of these plates an earthquake occurs. वो जो प्लेट रहता है अर्थ क्रस्ट में, जो सॉलिड प्लेट्स होते हैं सॉलिड रॉक्स का, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, वो प्लेट का जॉइंट में अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो earthquake होता है. So this the earth crust is made up of vast plates of solid rocks known as tectonic plates. If there is any kind of disturbance along the joints of these plates, वो जो plates है उसका joints में अगर कुछ disturbance होता है then an earthquake occurs. The place of origin of an earthquake deep inside the earth is called the focus. अर्थ का बहुत गहरा जगह में जो पॉइंट से earthquake स्टार्ट होता है, the place of origin of an earthquake deep inside the earth is called the focus. So what is focus? Focus is the place of origin of the earthquake which is deep inside the earth. अर्थ का बहुत गहरा जगह में एक पॉइंट को फोकस बोलते हैं जहां से earthquake origin होता है या सृष्टि होता है. The point on the earth surface directly above the focus of an earthquake is called epicenter. वो फोकस का सीधा माने स्ट्रेट ऊपर अर्थ सरफेस में जो पॉइंट मिलेगा माने उसको एपिसेंटर बोलते हैं. तो जो अर्थक्वेक होगा वो अर्थक्वेक का सेंटर में पूरा फोकस बोलते हैं जो पूरा निचला हिस्सा में है, बहुत गहरा हिस्सा में है. एंड उसको उससे ठीक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे 90 डिग्री में, जहाँ अर्थ सरफेस में टच होगा
उसको बोलेंगे एपिसेंटर। सो स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर व्हाट इज एन अर्थक्वेक एंड व्हाट आर द रेंजेस ऑफ अर्थक्वेक एंड that ranges are found in which instrument, with that is Richter scale, and how can we measure earthquake? We can measure earthquake by seismograph and causes of earthquake. earthquake का cause क्या है, and what is focus and epicenter. Okay, you just revise this. The place closest to the epicenter suffer the most एक्सटेंसिव डैमेज। अगर रिचर स्केल में ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा, जो कि हम सिस्मोग्राफ में मेजर करेंगे, तो क्षति कहाँ ज़्यादा होगा, एपी सेंटर का आसपास। द प्लेसेस नियरेस्ट टू द एपी सेंटर विल हैव मैसिव डिस्ट्रक्शन। ओके, द वाइब्रेशन ट्रेवल फ्रॉम द फोकस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हाँ फोकस है वहीं से वाइब्रेशन चारों ओर अर्थ सरफेस का ऊपर जाता है। अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक स्ट्राइक सडनली, दे कैनॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर एंड हाउएवर साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड सम एरियाज व्हिच आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। क्या बोलता है, तो अर्थक्वेक सडनली होता है, ये पहले से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे आजकल रेनफॉल को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्लड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो लेकिन अर्थक्वेक ड्रेट को प्रेडिक्ट कर ड्रॉट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट मतलब हम अनुमान कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं कि अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड कब होगा या साइक्लोन कब होगा। बट अर्थक्वेक इज ए नेचुरल डिजास्टर और ए नेचुरल कैलामिटी which we cannot predict beforehand, पहले से हम उसको अनुमान नहीं कर पाएंगे। However, scientists have identified some earthquake zone, कुछ जोन, कुछ एरिया, उसको सिस्मिक भी जोन बोलते हैं, सिस्मिक जोन, जहाँ पे अर्थक्वेक बार बार होता है। So, however, scientists have identified some areas which are prone to earthquake, earthquake के लिए बहुत खतरा है। सो दीज एरियाज आर कॉल्ड सिस्मिक जोन्स, ये भी याद रखो। इन इंडिया द हिमालयन रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक आज इट लाइज इन द सिस्मिक जोन। हिमालय एरिया सिस्मिक जोन में है, तो इंडिया में अर्थक्वेक कहाँ हो सकता है, हिमालयन एरिया में। जैसे उत्तराखंड में हुआ तुम सुना, तो क्यों, दैट इज इन हिमालयन रेंज, बिकॉज दैट इज देयर इन द सिस्मिक जोन। मेजर्स ऑफ सेफ्टी, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम अपनाएंगे अर्थक्वेक होने से। whenever an earthquake strikes, we can take the following measures। हम ये मेजर ले सकते हैं। क्या क्या मेजर लेंगे, देखो क्या क्या मेजर ले सकते हैं। whenever an earthquake strikes, we can take the following measures। क्या क्या मेजर्स लेंगे, देखो, मूव आउट टू ओपन एरिया थ्रू अर्थ इमरजेंसी एग्जिट डोर। जहाँ पे बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट डोर होता है, वहाँ वो थ्रू से हम ओपन एरिया चला जाएंगे। अवॉइड यूजिंग लिफ्ट्स एंड एलिवेटर्स, लिफ्ट और एलिवेटर यूज नहीं करेंगे। अर्थक्वेक जब होगा, हमको जब फील होगा अर्थक्वेक हो रहा है, हमारा बिल्डिंग में अगर कुछ इमरजेंसी डोर है, उसका थ्रू से हम क्विकली चला जाएंगे। हम लिफ्ट यूज नहीं करेंगे, हम एलिवेटर यूज नहीं करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम सॉलिड स्ट्रक्चर, जहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, टावर है, वो सब सॉलिड स्ट्रक्चर से दूर रहेंगे। लैम्प पोस्ट है, इलेक्ट्रिक की ट्रांसफार्मर है, ये सब जगह से दूर रहेंगे, क्योंकि वो अर्थक्वेक का चलते वो गिर सकता है, टूट सकता है। इफ स्टॉक्स इंडोर, टेक शेल्टर अंडर ए स्टडी टेबल और डेस्क। अगर इंडोर में फंस जाएगा तो एक स्टडी टेबल या डेस्क का
अंडर में रहने के लिए ये बोलता है। दीज आर सम सेफ्टी मेजर्स ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट आता है फ्लड। देखो फ्लड, ये दिस द पिक्चर ऑफ फ्लड। ए फ्लड ऑकर्स व्हेन ए रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड सबमर्ज द नियर बाय एरियाज। जब एक रिवर ओवरफ्लो हो जाता है, फुल होके उसका जो दोनों साइड है, दोनों रिवर बैंक्स बोलते हैं, वहाँ से पानी निकल के चारों ओर चला जाता है, तो उस टाइम में फ्लड होता है। सो ये फ्लड ऑकर्स व्हेन ए रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड सबमर्जेस द नियर बाय एरिया। सबमर्जेस मतलब डुबा देता है। देखो ये घर पेड़ ये सब डूब के रहा, तो ये इसको फ्लड बोलते हैं। सो फ्लड ऑकर्स व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड सबमर्ज द नियर बाय एरिया। फ्लड्स कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स को हानि करता है, क्षति करता है फ्लड। व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स माने कमती हो जाता है, वापस लौटता है। पहले तो आता है, फ्लड जब होता है पहले धीरे धीरे पानी आता है हमारा और गांव में, हमारा तालाब में, हमारा खेत में, हमारा बगीचा में, सब वो आ जाता है। रोड में चारों ओर पानी आ जाता है, लेकिन पानी आने के बाद कुछ दिन के बाद वो रिसीड करता है, मतलब पीछे जाता है, हटता है। व्हेन रिसीड्स देयर मे बी एन आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस। डिजीजों का सृष्टि हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है, सच एज मलेरिया एंड कोलेरा। ये सब बीमारी फैला सकता है, क्योंकि फ्लड आने से बहुत अपरिष्कार होता है, गंदा होता है एरियाज, और अनहाइजीनिक होता है कंडीशंस। सो ये हाई माने कोलेरा एंड मलेरिया, ये सब डिजीज हो सकता है। These diseases may spread rapidly leading to epidemics। महामारी, एपिडेमिक्स मतलब महामारी, जैसे कोरोना अभी एक ग्लोबल एपिडेमिक, ये चारों ओर फैला है। वैसे अगर कलेरा या मलेरिया ये बहुत जोर से फैलेगा, उसको हम एपिडेमिक भी कह सकते हैं। देन क्लॉजेस ऑफ फ्लड। फ्लड का क्या कॉजेस क्या है, क्यों फ्लड होता है? देयर आर सेवरल कॉजेस ऑफ फ्लड, हाउएवर द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ फ्लड इज एक्सेसिव एंड हेवी रेनफॉल। बहुत तादाद से अगर रेनफॉल होगा और बहुत जोर पानी आएगा नदी का ऊपरी हिस्सा में, तो पानी हर नदी में अगर फुल हो जाएगा, तो वो पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होने से फ्लड आकार में चारों ओर सबमर्ज करेगा। तो देयर आर सेवरल कॉजेस ऑफ फ्लड्स, हाउएवर द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ फ्लड इज एक्सेसिव एंड हेवी रेनफॉल, टॉरेंशियल रेनफॉल जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रेनफॉल। अगर लगातार बारिश होगा, जैसे सावन का महीना में लगातार बारिश होता है, इसीलिए सावन भादो में फ्लड आता है। क्यों? रेनी सीजन का आखिर पार्ट में सावन महीना में लगातार बारिश होता है या टॉरेंशियल रेन होता है, जिसका चलते हर नदी में पानी फुल आ जाता है। तो ड्यू टू एक्सट्रीम, ये एक रीजन है, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन समर, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स increasing the level of water in rivers, this leads to overflowing and flooding of the rivers। अच्छा, रेनी सीजन की बात किया, अब समर सीजन में यहाँ फ्लड नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह में होता है। क्यों? जहाँ पे आइस, पूरा आइस बर्फ रहता है, पूरा बर्फ जमाट रहता है, जैसे हिमालयन एरिया में, तो एक्सेसिव समर का चलते क्या होता है, जो बर्फीला पहाड़ में बर्फ मेल्ट होता है, पिघलता है। बर्फ जब आइस जब पिघलता है, पानी होता है, वो पानी जाता है पहाड़ी नदी में, तो पहाड़ी नदी फुल हो जाता है। फुल होने के बाद वो उसका पानी ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने से फ्लड होता है। सो ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन समर, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, दिस लीड्स टू ओवरफ्लोइंग एंड फ्लडिंग ऑफ रिवर्स।
Sometimes dams may overflow because of the heavy rains or get damaged and releases extra water which may also cause floods. Sometimes क्या होता है रिजर्वायर माने हमारा हीराकुद डैम में रिजर्वायर है जहाँ पे पानी को हम स्टोर करके रखते हैं, ये इसको रिजर्वायर बोलते हैं। तो रिजर्वायर में कभी कभी क्या होता है एक्सेसिव पानी स्टोर हो जाने से वो डैम का थ्रू से नदी में आके ओवरफ्लो होता है, फ्लड होता है। कभी कभी ये भी होता है रिजर्वायर टूट जाता है तो एक्सेसिव पानी नीचे तो और आ जाता है डैम का थ्रू से। सो समटाइम्स डैम्स में ओवरफ्लो बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स और गेट डैमेज्ड एंड रिलीज एक्स्ट्रा वाटर व्हिच में आल्सो कॉज फ्लड्स। डैम का बात किया, रिजर्वायर डैम। Floods can also be caused by landslides which block the rivers. Other causes of floods are strong tides, cyclones and tsunamis. So floods can also be caused by landslides. Landslides मतलब क्या है, तो पहाड़ी इलाका में जो पहाड़ से रॉक नीचे और गिरता है या मिट्टी नीचे और धंसता है तो लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंड का स्लाइड होना, भूस्खलन होना। तो लैंडस्लाइड्स का चलते क्या होता है, समटाइम्स फ्लड्स कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय लैंडस्लाइड व्हिच ब्लॉक द रिवर। रिवर को ब्लॉक कर देता है। रिवर को ब्लॉक करने से क्या होता है, पानी उसका एम्बैंकमेंट का थ्रू से या बैंक का थ्रू से चारों ओर फैल जाता है, एरिया मारून होता है या सबमर्ज होता है। Other causes of floods are strong tides, cyclones and tsunamis. समुद्र में सुनामी का चलते फ्लड होता है, बहुत जोर में ज्वार भट्टा का चलते फ्लड होता है, साइक्लोन्स का चलते भी फ्लड होता है। साइक्लोन्स मीन्स बात्या, ओके। सो ये सब का चलते फ्लड होता है। सो दीज आर दी कॉजेस ऑफ फ्लड्स। नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का मेजर्स फ्लड होने से we can prepare for floods in the following ways. Elevated areas should be identified and one should figure out how to reach these areas in case of emergency. Emergency जब होता है तो फ्लड इमरजेंसी होने से हमको वो जो हम पहले से आइडेंटिफाई करते हैं जो एलिवेटेड एरिया, वो एरिया को हम चला जाना चाहिए पहले से खबर मिलने से। सो एलिवेटेड एरिया शुड बी आइडेंटिफाइड एंड वन शुड फिगर आउट हाउ टू रीच दिस एरियाज इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन इमरजेंसी होने से कैसे वो एरिया तक पहुंचेंगे उसको पहले से तय करना पड़ता है। ये एक सेफ्टी मेजर। इन फ्लड प्रोन एरियाज एन इमरजेंसी किट कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रोप्स फॉर टाइंग थिंग्स, ए रेडियो, ए टॉर्च एंड स्पेयर बैटरीज, स्टॉक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड फूड शुड बी केप्ट हैंडी। मतलब हाथ का पास एक टॉर्च होना चाहिए, एक रेडियो होना चाहिए जहाँ से हम खबर सुनेंगे फ्लड के बारे में, और रोप्स होना चाहिए, कहीं जरूरत पड़ेगा उसको हम बांध के रख सकते हैं, और कुछ फूड्स, वाटर, ये सब रखना चाहिए। सो इन फ्लड प्रोन एरियाज एंड इमरजेंसी किट में क्या क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रोप्स फॉर टाइंग थिंग्स, बांधने के लिए, चीज़ों को बांधने के लिए स्ट्रॉन्ग रोप्स होना चाहिए, रेडियो, टॉर्च, स्पेयर बैटरी, रेडियो और टॉर्च के लिए स्पेयर बैटरी, और स्टॉक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड फूड शुड बी केप्ट हैंडी। मतलब हाथ का पास में रहना चाहिए सब चीज। सो all these electrical appliances in the house should be switched off and unplugged during flood का टाइम में ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बंद करना चाहिए। इन फ्लड प्रोन एरियाज ऑल द डैम शुड बी चेक्ड एंड मेंटेन ऑन रेगुलर बेसिस। जहाँ जहाँ डैम है उसको चेक करना है और मेंटेन करना है। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड एलोंग रिवर बैंक टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। तो मिट्टी का संरक्षण के लिए रिवर बैंक में मोर एंड मोर ट्रीज का प्लांटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रॉट।
A drought is caused by the lack of water due to very little or no rainfall over a long period. अगर बहुत दिन तक वर्षा नहीं होगा या बहुत ही कम वर्षा होगा तो ड्रॉट होता है. The lack of water leads to crop failure and storm leads to shortage of food. फूड का शॉर्टेज होता है ड्रॉट का चलते, क्योंकि क्रॉप का फेल्योर होता है. When a drought leads to starvation and death of large number of people and animals, it is known as famine. Famine क्या है? FAMINE. Famine means जब ड्रॉट लगातार रहेगा और बहुत एनिमल का मौत होगा, प्राणी का मौत होगा, उसको फेमाइन बोलते हैं. एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ड्रॉट? का कॉजेस क्या है? ड्रॉट तो लैक ऑफ वाटर ड्यू टू रेनफॉल और लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल का चलते हुआ, वो डेफिनेशन हुआ. एंड उसका चलते फूड क्रॉप्स का नुकसान होता है और दैट लीड्स टू इवन स्टारवेशन ऑफ पीपल एंड एनिमल एंड इवन इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड एनिमल व्हिच इज कॉल्ड फेमाइन. बट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ड्रॉट? A place is located far away from a natural source of water. Natural source of water से एक प्लेस को लोकेट किया जाता है. Such as sea, the winds lost this moisture before they reach such places and do not cause any rainfall there. So क्या? If a place is located far away from natural source, जहाँ पे पानी का जो नेचुरल सोर्स है वहाँ से दूर अगर एक प्लेस है और वहाँ पे क्या होता है? सी नहीं रहता है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, दी विंड्स लूज देयर मॉइस्चर. विंड में जो मॉइस्चर हो रहता है तो वो नहीं रहता है, विंड का मॉइस्चर लॉस होता है. एंड वो जगह में विंड पहुंचते पहुंचते उसका जो विंड में जो मॉइस्चर रहता है वो नहीं रहता है और वहाँ पे रेनफॉल नहीं करता है. तो विंड का में मॉइस्चर रहने से, वो ठंडा होने से रेनफॉल होता है ना. तो अगर दूर समुद्र से या कहीं पानी का प्लेस से बहुत दूर में एक जगह रहेगा तो वहाँ तक अगर हवा में जहाँ पे भी जितना तुम्हारा पानी रहता है वो धीरे धीरे जाने से सूख जाएगा और क्या होगा? वहाँ पे बारिश नहीं होगा तो ड्रॉट होगा. एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज ऑल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो रेनफॉल का अमाउंट अफेक्ट करता है. अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ज़्यादा बारिश होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो कम बारिश होगा या बारिश नहीं होगा. मेजर्स ऑफ सेफ्टी मेजर्स क्या है? मोर नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड. प्लांटेशन प्रति ध्यान देना है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी अडॉप्टेड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज. जहाँ पे ड्रॉट होता है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए. ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, जो क्रॉप ड्रॉट होने से भी रेजिस्ट होकर होता है उसको उगाना है, जैसे मिलेट्स, मेज, ये सब ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप. मिलेट्स को जगाएंगे, मेज को जगाएंगे. साइक्लोन आर वायलेंट स्टॉर्म्स इन व्हिच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन सर्कल्स एंड कॉज थंडर, ट्रेमेंडस डैमेज टू द कोस्टल एरियाज. इन पास्ट, नियर पास्ट, 1-1.5 साल पहले फनी हुआ था. तो फनी इज ए साइक्लोन, सुपर साइक्लोन. कितना नुकसान हुआ था क्योंकि समुद्र का पास में पूरी डिस्ट्रिक्ट है और भुवनेश्वर खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में, तो खुर्दा इज द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुरी. सो फनी जो पुरी में हुआ तो इट अफेक्ट्स खुर्दा इन टोटल एंड भुवनेश्वर इन पर्टिकुलर. सो साइक्लोन इज ए violent storm in which strong winds, circular winds move and causes tremendous damage to the coastal area. Next, the accompanied by very strong winds and heavy rainfall that can cause floods and
high tidal waves. तो ये जो लिखा है they are साइक्लोन का क्लोजेस क्या है? They are accompanied by this cyclones are accompanied by very strong winds and heavy rainfall. उसका साथ very strong winds और heavy rainfall भी लेके आता है. कौन? Cyclones. And these heavy strong winds and heavy rainfalls can cause even floods and high tidal waves. In different parts of the world, cyclones are also known as hurricanes and typhoons. वर्ल्ड का वेरियस पार्ट्स में ये जो साइक्लोन है उसको हरिकेन या टाइफून्स भी बोलते हैं. सो दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ साइक्लोन्स. कॉजेस ऑफ साइक्लोन्स. वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ साइक्लोन इज स्ट्रॉन्ग वार्म विंड्स. स्ट्रॉन्ग वार्म विंड्स कैन कॉज साइक्लोन. These winds travel at great speed, destroying everything in their path. Strong hot winds can cause cyclone, and these winds can move very fast, destroying everything in their path. The speed of the such winds is generally over 62 km per hour. 62 km per hour से अगर अधिक जोर से हवा बहेगा उसको हम साइक्लोन बोलते हैं. Measures of safety. We can prepare for cyclones in the following ways. If a warning for cyclone has been issued, people should listen to the television or radio for further updates. जब साइक्लोन होता है तो हम लोग टीवी से सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं, तो हम लोग सुनना चाहिए न्यूज़. Then shortest and fastest routes to reach the safe shelter should be identified. So सरकार ने सब बात्या घर या साइक्लोन हाउस किए हैं. क्यों? अगर इमरजेंसी में सुपर साइक्लोन होता है या साइक्लोन होता है तो people should be shifted to those places. So the shortest and fastest route to reach the safe place should be identified well in advance. People living in cyclone prone areas should have an emergency kit ready. उन लोगों के पास इमरजेंसी किट रेडी रहना चाहिए जो साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं. जैसे मछुआरे समुद्र का किनारे रहते हैं, अपना घर बसाते हैं और डेली डीप सी में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं और आते हैं शाम को. तो साइक्लोन जब होता है वो लोग नहीं जाना चाहिए अंदर हैं, और वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए. तो ये सब सतर्क वार्निंग सरकार जारी करते हैं रेडियो और टेलीविजन का थ्रू से. तो पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया शुड ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी किट रेडी. पीपल शुड नॉट People should not venture in or near oceans and seas if a warning for cyclone has been issued. जैसे बोला मछुआरे के बारे में, तो people should not venture to deep sea to catch fish in these periods. Okay, so this is all about the natural calamities. In this topic, we have discussed about the flood, साइक्लोन, ड्रॉट एंड व्हाट एल्स, अर्थक्वेक. पहले अर्थक्वेक के बारे में पढ़े, उसका बाद फ्लड के बारे में पढ़े, उसका बाद ड्रॉट एंड आखिर में साइक्लोन्स. सो स्टूडेंट्स, प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद ऑल दिस 4 नेचुरल कैलामिटीज और नेचुरल disaster. Okay, and these are the key terms: disaster, epidemic, seismograph. What are these? We have already discussed. And based on this total chapter, you can do the homework. Okay, thank you.